The first chapter in physics class 12th is electrostatics. In this chapter we will study about frictional electricity, properties of electric charges, Coulomb's law in vector form, units of charge, relative permittivity and continuous charge distribution. So let's get started. The first topic is frictional electricity. When two bodies rubbed with each other, the electron get transferred from one body to another, and the electricity produced in this process is known as frictional electricity. So we will take an example. Let's take a glass rod and a silk cloth. If we rub both of them, then we will see that the electrons in glass rod get transferred to the silk cloth, and this process of generating or producing electricity is known as frictional electricity. One more thing, that the electrons in glass rod are loosely bound to each other, means जो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत हल्के बंधे हुए होते हैं, मतलब हल्के से होते हैं, सो वो आसानी से टूट जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी बॉडी पे. तो इस वजह से जो आपका सिल्क क्लॉथ होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो आपका ग्लास रॉड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. We will take one more example. Let's take an ebonite rod and a fur, means wool cloth. You know, ऊन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. So if we rub both of them, then we will see that the electrons from fur or flannel get transferred on the ebonite rod. That clearly shows us that the electrons in fur or wool are very loosely bound, so they get transferred to the glass rod, and in this process the fur get positively charged and the ebonite rod get negatively charged. So now, the process of electrification. What is electrification? The transfer of charge from one body to another is known as electrification. बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि एक बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है. और इन इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स इन चार्जिंग ऑफ अ बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल. If a body gain electron, that means excess of electrons on a body makes it negatively charged, and if a body lose an electron, then it gets positively charged. That means the deficiency of electrons makes the body positively charged. Here we can see some examples. In column 1 we have positively charged bodies, and in column 2 we have negatively charged bodies. If the glass rod is rubbed in silk, then glass will become positively charged because the electrons in glass get transferred to the silk. Similarly, if wool or funnel or fur is rubbed in amber, rubber, plastic or ebonite, the electrons in wool or fur get transferred to the amber, rubber, plastic or ebonite. Similarly, if ebonite is rubbed in polythene, we will see that the electrons from ebonite get transferred to the polythene. One more thing that is very much clear, that the electrons get
transferred from a body in which electrons are loosely bound. एक और एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत किया होगा कि अगर आप सूखे बालों में कंघा रगड़ते हैं और उस कंघे को फिर से कागज के पास ले जाते हैं तो कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट मीन्स कि अगर रब होता है ड्राई हेयर से आपका कॉम्ब, दैट मीन्स कि ड्राई हेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, दे देता है किसको, कॉम्ब को. इस केस में आपका कॉम्ब जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर वो किसी ऐसी चीज के पास ले जाया जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज हो तो वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज. नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है कोई तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, दिस इज नोन एज नेगेटिव चार्ज. You all know that like charges repel each other and unlike charges attract each other. Similarly, you have studied in class 10th that similar poles of a magnet always repel and unlike poles of magnet always attract. Third thing, charge is a scalar quantity. There are two types of quantities, vector and scalar. We all know about them. So let's get to the fourth one. The charge is means charge shows additive nature. As I told you that charge could be negative or positive. If there are many charges in a system, then all the charges will sum with their nature. अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में जुड़ेगा और नेगेटिव है तो वो घट जाएगा. सो जो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर भी शो करता है. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है. दैट मीन्स कि केवल और केवल वो होल में पाया जाता है. एक किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज जाएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 1, 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे. कभी आधा इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते हैं. बट अगर हम फर्दर स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली क्वार्क एक होता है. क्वार्क में क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं. 1/3 इलेक्ट्रॉन्स, 2/3 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 1/3, 2/3 फ्रैक्शन में है तो उनको हम क्वार्क बोलते हैं. बट वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकली कुछ केसेस में मिलते हैं, बाकी वो बहुत कम मिलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटिटी ऑफ चार्ज. इन 1 इलेक्ट्रॉन the quantity of charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. One more thing, the charge is denoted by Q, and the formula to calculate the quantity of charge is Q is equal to N into E, where E is the symbol of electrons, where the value of E is always 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. One more thing, the unit of charge is coulomb. So charge could be negative or positive.
So Q is equal to plus minus N into E, where N is the number of electrons. How many electrons are present in that? I mean, how many electrons are excess or deficient. One more thing, charge shows conservative nature. Means if there is a system which have many bodies and all the bodies are charged, then the total charge of that body will always remain same. For example, जैसे मैंने अभी या हम लोगों ने एक रॉड लिया था ग्लास का और एक सिल्क लिया था, तो सिल्क और ग्लास के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, मतलब वो दोनों क्या थे, ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज थे और ना ही वो नेगेटिवली चार्ज थे, मतलब वो न्यूट्रल थे. लेकिन जब वो एक दूसरे से रब किए गए, उस दौरान जो चार्ज था एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ. बट इन दिस प्रोसेस अब दोनों बॉडीज पे जो चार्ज होंगे आफ्टर रबिंग, अगर उन दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे तो उनका सम 0 होगा. क्यों? क्योंकि पहले भी 0 ही था, दोनों बॉडीज जो थी वो न्यूट्रल थी. तो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट द charge is a conservative nature showing quantity. Here you can see that the existence of quark is always 1/3 electron, 2/3 electron, but it can only be seen in experiments. Now we will discuss about Coulomb's law. What is Coulomb's law? When two charged bodies are separated from each other by a distance r, then the electrostatic force between them, we have studied gravitational force in class 9th. वहां पे क्या होता था कि दो बॉडीज होती थी जिनका मास m1 और m2 होता था और वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी जाती थी, और इन दैट केस द फोर्स बिटवीन देम, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. Similarly, if two charged bodies are separated from each other by a distance r, then the electrostatic force between them is directly proportional to the product of their charges. The only difference between gravitational and electrostatic force is there were two bodies which have mass m1 and m2, and here there are two charged bodies which have charge q1 and q2. So the electrostatic force between them, F is equal to q1 q2 upon r square. But we will see some more things about this. The force, electrostatic force F, is directly proportional to the product of their charges. F is proportional to q1 q2. Similarly, the electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between them. That means here two bodies are taken which have charge q1 and q2, and the distance between them is r. So the force between them, F, is directly proportional to the product of their charges q1 and q2. F is proportional to q1 and q2. Similarly, F is proportional to, inversely proportional. Inversely means 1 upon something. So inversely proportional to the square of distance between them. Yani F is proportional to 1 upon r square. So अगर हम दोनों को combine करते हैं, then we will get F is proportional to q1 q2 upon r square. We always
आई मीन वी हैव ऑलवेज स्टडीड कि अगर हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है k, और k जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या उसको हम कूलॉम कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ k इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यूनिट बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, आर स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दें तो वो ऊपर जाके क्या होगा, एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q1 Q2 जो होगा वो आपका नीचे आ जाएगा। इन दैट केस फोर्स इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, अपॉन Q इंटू Q, और Q जो होता है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K। The K is also can be written in the form of 1 by 4 pi epsilon naught. This is for vacuum. अगर दो चार्ज वैक्यूम के अंदर एक दूसरे से सेपरेट किए गए हैं r डिस्टेंस पे, तो वहां पे 1 by 4 pi epsilon naught आएगा, जहां पे हम epsilon naught को परमिटिविटी कहते हैं फ्री स्पेस की, यानी वो इलेक्ट्रॉन को कितना परमिट कर रहा है एंटर करने के लिए, या यूं कह सकते हैं ट्रांसफर होने के लिए, मतलब उस कह सकते हैं मीडियम की परमिटिविटी। तो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट। सो इन दैट केस k इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10 to the power 9. If in this we will put the value of 4 and pi, then we will get the value of epsilon naught, and that is 8.85 into 10 to the power minus 12. What? 8.85 approximate जो होगा ये 8.84 something होगा, but we will take 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी जो यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो k की यूनिट की जस्ट उल्टी होती है, क्योंकि k का ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाता है तो k नीचे आएगा, और k नीचे आने का मतलब 9 into 10 to the power 9। अगर हम किसी मीडियम में बात करते हैं तो वहां पे k की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 by 4 pi एप्सिलॉन। केवल एप्सिलॉन के बाद में नॉट नहीं लगता, नॉट का मतलब जीरो नहीं लगता, जीरो नॉट यानी जीरो नहीं लगता। सो इन दिस केस k इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन। ये किसी मीडियम की बात हो रही है जहां पे एप्सिलॉन जो होता है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है उस मीडियम की जिसमें ये दोनों चार्ज रखे गए होते हैं, मतलब उस मीडियम के अंदर। अभी तक हमने वैक्यूम में लिया था तो वहां एप्सिलॉन नॉट था, अब हमने एक मीडियम के अंदर लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। अगर हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स कि अगर हम दोनों केसेस में जो हमारे k होते हैं, मतलब वैक्यूम और किसी भी मीडियम में अलग अलग वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। दैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन कुड बी, आई मीन इट इज वेरिएबल, इट कुड वेरी, द वैल्यू ऑफ epsilon could vary, but epsilon naught is always constant, and the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. So the ratio of absolute electric permittivity, absolute कब लेते हैं, जब किसी मीडियम में होगा तो उसको हम absolute electric permittivity बोलते हैं, और जब केवल
वैक्यूम में होगा तो वहां पे एप्सिलॉन के साथ नॉट होगा, और वहां पे जो होगा वो केवल इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगा, यानी कि आपकी एब्सोल्यूट नहीं लगेगा उस केस में. सो द रेशियो ऑफ absolute electric permittivity and electric permittivity is known as inducive capacity, specific inducive capacity. It is also known as dielectric constant. It is also known as relative permittivity. Relative permittivity is denoted by epsilon r. R is relative. R is relative. So here you can see that in vacuum the formula of force, in vacuum the Coulomb's law stands F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square, whereas in any medium the F is equal to 1 by 4 pi. 1 by 4 पाई. अब अगर आप इस बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ से हम अगर एप्सिलॉन की वैल्यू, हमने आपको बताया था कि इन अ मीडियम k इज इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन. यू कैन सी इट इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन दैट k इज इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन ओनली. एंड अगर आप बॉक्स में देखते हैं तो वहां से हम केवल एप्सिलॉन की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो जो एप्सिलॉन नॉट आपका डिनोमिनेटर में है वो ट्रांसफर होके क्या होगा, एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दैट केस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एंड दैट इज एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट. सो वी कैन पुट दैट इन एफ इज इक्वल टू 1 by 4 पाई, जहां पे आपका एप्सिलॉन था वहां पे अब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. कब के लिए, किसी मीडियम के लिए, जब ये किसी मीडियम में होगा. हमने आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी जो कि हमेशा फिक्स होती है. वो कितनी होती है, 8.854 इंटू 10 to the power -12. ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बता चुके हैं. आपको क्या करना है, आपको बताया था मैंने कि 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अगर वहां पे आप इस वैल्यू को मतलब रखते हैं के प्लेस पे, तो वहां से आप और 4 और पाई की वैल्यू पुट करते हैं, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ये यहाँ पे आपको 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दी गई है, 8.9875 इंटू 10 to the power 9. This is the exact value of 1 by 4 pi epsilon naught, but the numerical value that is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Now we will study about Coulomb's law in vector form. Now here we will take two charged bodies Q1 and Q2. They have charge Q1 and Q2 and they are separated with the distance r. First of all, we will take two positive bodies, positively charged bodies. So the product of charges of them will be positive. Q1, Q2 will be positive, and in that case, the product of Q1, Q2 will be greater than 0. So the first case is where Q1 Q2 is greater than 0. So the first case is when the force is acting from first body to the second body. So the distance is taken r1 2 from 1 to 2, first to second. So the force will act in this process from first body to second body. Here we will take two negatively charged bodies. The product of them will be positive this time too, and the distance between them will be r1 and r2. So the force that will act
on this system will be work from second body to the first body. In first case, the force will be F1 to 2, 1 by 4 pi epsilon naught. 1 to 2 means from first body to second body. 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ये आपका क्या होता है, ये आपको फार्मूला होता है. बट क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो इस वजह से हमें क्या लेना होगा, R21 जो आपका शो कर रहा है R21 कैप, वो आपका डायरेक्शन शो कर रहा है. वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, साथ साथ में डायरेक्शन होता है. किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ, सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी की तरफ. सिमिलरली सेकंड केस में आपका फोर्स जो निकालना है वो किस तरफ से किस तरफ को निकालना है, सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी की तरफ. और इस बार आपका जो वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस ली जाएगी वो फर्स्ट से सेकंड की तरफ ली जाएगी. तो ये प्रोसेस आपका याद रखना है कि जब आपका फर्स्ट से सेकंड लिया जाएगा फोर्स तो आपका डिस्टेंस उल्टी डायरेक्शन में लिया जाएगा, और जब आपका सेकंड से फर्स्ट की तरफ लगेगा तो उल्टी डायरेक्शन में यानी 1 से 2 की तरफ लिया जाएगा. अब हम तीसरा केस लेते हैं, जबकि वेक्टर केस में क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी दूसरी वाली होगी. इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विल बी नेगेटिव, सो द Q1 Q2 विल बी what, less than 0. Q1 Q2 will be less than 0. Here two bodies are taken. First is positively charged Q1 and the second body is negatively charged minus Q2. So the product of Q1 Q2 will be minus negative number, and negative number is less than 0. Now they will get attracted towards each other because आपने पढ़ा है कि लाइट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहां पे रिपेल कर रहे थे. इस वजह से आपका उल्टी डायरेक्शन में हर बार क्या लेना पड़ा, डिस्टेंस लेना पड़ा, क्योंकि दूर जाएंगे. तो अब की बार क्या होगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. और अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2. और दूसरे केस में जब 2 से 1 होगा तब भी 2 to 1. यहाँ पे उल्टा नहीं लेना है. ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब लाइक चार्जेस होंगे वेक्टर फॉर्म में, लाइक चार्जेस मतलब चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो अगर हमारा फोर्स 1 से मतलब फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ लगेगा तो क्योंकि रिपेल होंगे इस वजह से आपको जो प्रोडक्ट लेना है वेक्टर फॉर्म में आर का, यानी आर का जो फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आर जो लिया जाएगा वो उल्टा लिया जाएगा. अगर आप फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और उस केस में निकाल रहे हैं तो आपका आर 1 से 2 होगा, और अगर आप सेकंड से फर्स्ट की तरफ निकाल रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा, 2 to 1 होगा. मतलब आपका उल्टा हो जाएगा दोनों केस में. ठीक है. Unit of charge is coulomb. In SI system the unit of charge is coulomb. ये आपको हम बता चुके हैं. अच्छा, अगर आपको कभी निकालना हो कि अगर किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कितना चार्ज जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम का. लेकिन अगर कोई पूछे कि एक कूलाम चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर है तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट बॉडी, या फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू दैट बॉडी. तो अगर हमें वो निकालना है तो 1 कूलम आपका चार्ज हो गया, यानी वो वैल्यू ऑफ Q हो गई. सो Q इज इक्वल टू N इंटू E आपने पढ़ा हुआ था. सो उस केस में आपको Q के प्लेस पे 1 कूलम रखना है और N इंटू E, N इंटू E. N मतलब आपका नंबर ऑफ चार्ज जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आप क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे. और E आपका क्या होगा वहां पे, E आपका होगा
एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो वो आपका क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा उस तरफ, और उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो यू कैन लाइक, एंड अगर अच्छा नहीं लगा है यू कैन डिसलाइक। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और भी वीडियोस के लिए। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो टेक केयर, गुड बाय।